In this video, we are going to address a classic problem where you plan, think about your actions a lot, their consequences a lot, but do not end up executing your plans. So, this is a classic case of procrastination, you delaying things, and we usually feel that we are doing this because we are lazy, we do not have energy, and all of those things. But whenever I sit down with people to understand this delay, the kind of stuck feeling that they have inside of them. There are so many things that come up, and the main thing that we need to work on is having an appropriate gap between your planning and execution. For some people, the gap between the planning and execution is too much, due to which they plan, and they do not execute, and then they feel that whatever I wanted to do that I'm not able to do, get more into guilt, and then nothing comes out of this whole process. So they are all the time living in their head. And the second category of people is where people don't think but act on every single idea that is popping into their minds, and then they get lost and confused because they're doing so many things that are not aligned to them. So, can I tell you what is the appropriate gap for your personality? No, I cannot tell you that. You have to decide that for yourself. Like, what sweet spot is working best for you? In what activities do you want to keep this gap longer, and in what activities you want to keep this gap shorter? And what happens is that, this problem is higher in those people who are very, very critical of themselves. In the outside world, they will look like, high performers, have everything in place, everything figured out, perfectionists. But internally, there's a lot of self criticism. There is a lot of self doubt, due to which there is a lot of delay in the actions that they want to take. Not knowing how they will be perceived by the world, or feeling that fear of being shamed and blamed again. So there are so many fears that can come up during this process, and these need to be addressed because if you have been procrastinating from a very long period of time, I highly suggest that you talk to somebody, and life coach is the best person that you can talk to. You can book a call with me. You'll find the top mate link in the description. You just need to go there and book a call with me, and we will figure it out together that what is not working for you and what is working for you, and how can we move towards having a more productive day and a more productive life where you feel more fulfilled with your activities. So before we move forward to the category 1 where there is a lot of gap, and the category 2 where there is no gap at all, I first want you to decide how much of your life do you want to be filled with the push energy, which is very, very masculine in nature, or with the pull energy, which is very, very feminine and creative in nature. This has to do nothing with male or female, and nothing like, this masculine is good for boys and feminine is good for girls, nothing like that. It's all up to you and your preferences. So the masculine way is where, you push yourself to transcend your limits. Okay, your days are highly structured कि इस दिन में ऐसे hour by hour you have a plan that what you're going to do. Or for example, if I'm creating videos, I have a fixed thing that every week 2 videos must go, no matter what happens. Every week 3 videos must go. All of the structures involved there. And people have actually done great things using these techniques as well, where you're very structured, very specific goals, very driven, and you push yourself. Even if you're feeling a pain today, you don't want to make a video, but you still push yourself to make a video. This can happen. So where does this work? This works in the field where you want to transcend your physical limitations, like sports. You want to become an athlete, you want to train for a longer period of time. All of those things have to be done, and we have great examples like David Goggins, who has developed that mental toughness and all of those things. So here you go through the pain to endure the pain, push yourself, use willpower, and then you develop the capability. The other way, the feminine way, is that you have a vague plan in your mind, and you just, allow yourself to flow. You surrender. So, taking again the videos example, that you only make a video when you feel like making a video.
And if you ask me, my life is now like 70% it's pull energy. I do things that I'm pulled towards. I make videos that I am really, the topics that really excite me, or my clients have the issues about it. So I do not have like, every week 3 videos or 2 videos. You'll see sometimes there are 3 videos a week, sometimes there's a single video a week, but it really depends on my creative inspiration. So if somebody is highly driven and comes from a masculine perspective, that person will think, oh, she's an indisciplined girl. She's making it her full-time business, a full-time job, and still there is no consistency in her. But that's not how I see my work. So there has to be a lot of calmness, there has to be a lot of creativity in my work, and if the energy is not coming from within, the videos are not going to do well. So if you see, every single video that has done well on YouTube is actually a video where the creative inspiration has come on its own. So I don't mind allowing myself to wait for the right times to say the right thing at this right time. And I just love that fact about the pull energy. That's how I also found out that what is it that I really want to do in my life as my career. It was never by pushing myself. By pushing myself, what happened? I failed in cat like 3 times, like it failed in the sense I always got a percentile between 70 to 85 percentile. I was never really able to push myself to study. विल पावर थी ही नहीं मेरे अंदर, राइट? और यहाँ पे आई डोंट हैव टू यूज विल पावर, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन. लाइक आई जस्ट नीड टू डू द थिंग्स दैट आई एम गुड एट, एंड देर इज रिफाइनमेंट. येस, आई हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद द प्रोसेस, बट देर इज लॉट ऑफ रिफाइनमेंट इन द वर्क. बहुत ज़्यादा स्किल्स सीख ली है मैंने, और जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थेरोटिकली सीखती 2 साल के लिए, मैंने प्रैक्टिकली देखा है जब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ. सो यू हैव टू लुक एट व्हाट्स द वे आउट फॉर यू, और कितना फ्लो चाहिए लाइफ में, और आपको कितना डिसिप्लिन चाहिए, वो आप एक चूज़ कर लो. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पे गैप जो है आपके बीच में वो बहुत ज़्यादा है. सबसे पहला तो आपके अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी होगी ही, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है दो चीज़ों के बीच में. यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट एवरी वर्स्ट केस पॉसिबल, और उसके लिए आपको एक प्लान इन प्लेस चाहिए. तो इट्स कमिंग फ्रॉम अ फियर. तो आप उस फियर पे वर्क कीजिए कि वो फियर आपको क्या कह रहा है, वो फियर आपको किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है. इज इट क्रिटिसिज्म, इज इट शेम, इज इट जजमेंट? और जब आप कोई काम करते हो ना, वो जो एक्शन है उसको इवैल्यूएट करो कि 2 ही रीज़न है कि आपने इतना बड़ा गैप क्यों रखा. फर्स्ट, यू आर नॉट एबल टू अलाइन योर सेल्फ विद द वर्क. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को मैथ्स टीचर बनाने की कोशिश करूँ, एक टाइम में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था या फिज़िक्स बहुत अच्छा था, बट इवेंचुअली मेरा फिज़िक्स और मैथ्स में से इंटरेस्ट चला गया था. तो इट्स नॉट गोना हैपन नाउ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है अब उस चीज़ में. तो आई के नॉट, मैं कुछ भी करके खुद को उतना पुश नहीं करना चाहती. तो देर इज़ अ मिसअलाइनमेंट. अगर मिसअलाइनमेंट होगा, आप खुद को कितना भी पुश कर लो, आप खुश नहीं रह सकते उस काम को करते हुए. सेकेंड चीज़ जो है कि आपने जो गोल दिया है खुद को, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने खुद को गोल दिया मुझे 8 घंटे पढ़ना है, आपके अंदर कैपेसिटी आधा घंटा पढ़ने की भी नहीं है, तो आप कैसे 8 घंटे पढ़ोगे? सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टारगेट्स लाइक, मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, देन आई विल टेक अ ब्रेक, आई हैव अ नैप, एंड देन आई सॉल्व अनदर 30 क्वेश्चंस. और तब जाकर आप देखोगे कि आपका जो काम है उसका इफ़ेक्टिवनेस आ रहा है. अदरवाइज आप बस सोचते रह रहे हो, आप उसका कोई इफ़ेक्टिवनेस आपको दिख नहीं रहा है. वही आप दूसरे कैटेगरी में भी हो सकते हो. देयर सो मेनी पीपल हु आर हाई परफॉर्मर्स, हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें, बट अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं है, भले ही बाहर से कितने भी वो अचीवर्स लग रहे हो, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके साथ अलाइन नहीं. तो ये जो हाई अचीवर्स है, या जो सेकंड कैटेगरी है, जो बहुत कम है उनका गैप बिटवीन थिंकिंग एंड एक्शन, दे नीड टू सिट डाउन, दे नीड टू रिलैक्स, एंड हर वीक के बाद इवैल्यूएट करे कि मेरे कौन से एक्शंस मेरी एनर्जी को बढ़ाते हैं और मेरे कौन से एक्शंस मेरी एनर्जी को घटाते हैं. ये एक प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन हर वीक में होना चाहिए कि आपने आपके टाइम को कैसे यूटिलाइज किया है. और प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप करियर में कैसे कर रहे हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हो, बट सिंपल एक मतलब है कि आपने आज जैसे टाइम स्पेंड किया है, आपका दिन स्पेंड किया है,
आपको उससे कितनी सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट है, आप कितने अच्छे से सो पाते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पूरा इनडिसिप्लिन बन जाना चाहिए, पूरा डिसिप्लिन को निकाल देना चाहिए लाइफ से, ऐसा हो नहीं सकता। देयर आर सम एरियाज जहाँ पे आपको पुश एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर लगेगा, मैस्कुलिन सिस्टम लगेगा, क्योंकि अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स, तो आपको एक प्लान एंड प्लेस लगेगा। बट उसके लिए पहले आपको खुद को वो छोटे छोटे सेल्फ डिसिप्लिन के लेसन से स्टार्ट करना पड़ेगा और खुद को पेशेंस के साथ ट्रीट करना होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं उनकी लाइफ में, दे हैव बीन थ्रू लॉट इन देयर लाइफ, एंड ये जो मैंने कैटेगरी बताई जहाँ पे बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो खुद से, परफेक्शन हो, परफेक्शनिज्म है आपके अंदर, तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पुश करके, आपको प्रेशराइज करके आप चीज़ें और ख़राब करते हो और अच्छी आप नहीं करते। अगर आपको कोई छोड़ दो और बोले कि तुम अपने हिसाब से करो, एक्सपेरिमेंटेड, फाइंड आउट जो भी आपको करना है, और आपको एक खुला ग्राउंड दे दिया जाए, तो आप ऐसी चीज़ें करते हो जो आपको भी पता नहीं कि आपने कितने अच्छे से की है। तो मैं इन इन लोगों के लिए स्पेशली क्या रेकमेंड करती हूँ इज़ दैट कि सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे डिसीजंस लेकर। वो डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी ले कि सही हुआ तो भी मेरा डिसीजन है, गलत हुआ तो भी मेरा डिसीजन है। उसके बाद आपको अप्रिशिएट करना है फॉर टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स। और जब आप कुछ शुरुआत करोगे ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि क्या बना दिया मैंने। जैसे मैं वीडियोस बनाने के लिए बोलती हूँ या किसी को वीडियोस बनाना शुरू करना होता है सोशल मीडिया पे, तो वो अपनी फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, उनकी आवाज़ कैसी आ रही है, वो कैसे दिख रहे हैं, बहुत क्रिटिकली जज करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ वो काम मुझ पे छोड़ दो वैल्यूएशन का, क्योंकि मैं आपको एक न्यूट्रल फीडबैक दूंगी ना। जब हम खुद को देखते हैं तो एक बायस के साथ देखते हैं, इधर बहुत अच्छा देख लेते हैं, बहुत बुरा देख लेते हैं, तो हमको जो फीडबैक है वो किसी और से मिलता है तो न्यूट्रल मिलता है। तो आप किसी एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जो आपको एक न्यूट्रल फीडबैक दे सकते हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी में जो कोचेस हैं उनको हम एक फीडबैक, मतलब सब एक दूसरे को फीडबैक्स देते रहते हैं कम्युनिटी में, तो एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बायस्ड है यहाँ पर। और अगर आप मुझसे पूछो कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, वो ये देख लेना है कि आप मॉर्टल है, कि आप एक दिन इस बॉडी को छोड़ देंगे, यू विल डाई। एंड आस्क योर सेल्फ, अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, आस्क योर सेल्फ कि दिस फॉर द लास्ट 24 आवर्स ऑफ योर लाइफ, तो आप उसको कैसे जीना चाहेंगे। और जो आप करना चाहेंगे वही आपका लाइफ पर्पस है, वही आपकी वो चीज़ है जो आपको मैटर करती है, और उसी से आपको फुलफिलमेंट आती है। तो इस क्वेश्चन को अपने साथ रहने देना और देखना कि क्या आंसर्स आते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये जो आई है ना, आई को प्रोसेस में से हटा देना। मतलब कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मोर देन कि मैं कैसी दिख रही हूँ वीडियो में, व्हाट मैटर्स इज कि जो लोगों को मैं एड्रेस कर रही हूँ या जो लोगों की ये प्रॉब्लम है उन्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मुझे उन क्राइटेरियाज पे खुद को जज करना है और इम्प्रूव करना है। सो इट इज़ ऑलवेज अमेजिंग टू go with continuous improvement rather than delayed perfection. सो आप खुद को ये परमिशन दीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जब बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं की होती है, अगर हम इमोशनली फिट नहीं हैं तो हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में आप डेफिनेटली मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट यू हैविंग, लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। Subscribe to my channel if you liked what you see.